Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, you are welcome for continuity of our Bhakti Vedanta study of 8th canto of Srimad Bhagavatam. We are in chapter 16, the Payovarth celebration by Mother Aditi. We have finished the one session in which Kashyap Dev asked Mother Aditi about her moroseness, unsatisfaction in a household life. And there are a list of questions. Can we recount all those? What are the different possibilities in household that can keep the atmosphere of the house disturbed? What are the different possibilities? Kashyap asked Aditi, number one, something. Religious principle. What principles? Religious Religious principle, dharma. Number one, dharma. Dharma, artha, kana. Three things. What next? Atithi. Atithi are the guests are well received. Yes. And what if somebody is not receiving guests properly? Huh? You told about the hell where evil plucks the eyes. That is in a fifth canto. Here, what is the householder who will not receive the guest properly? Guest go without even a glass of water. That house is equal to holes of jackals. And what is the minimum atithi one should at least offer to a atithya one should offer to a uninvited guest? Minimum. Give a seat and give a glass of water. What is next? What is the next which should be in a household? No? fire sacrifice. Yes, yajna in the house. Along with yajna, there is some other thing also. Yajna and charity. Is Brahman word is there along with yajna? Yajna and Brahman. Why they should be taken care? Why the yajna and Brahman should be taken care? Lord Vishnu accept the offerings through the fire or through the mouth of Brahman. Therefore, they should be always respected. And what is the last item for any householder to be disturbed? Their children are well situated. So, which was the real problem of Aditi? Her children lost the opulences and their residence along with. So she was requesting that Kashyap should protect her children. But in request, Aditi has used couple verses to glorify the greatness of
her husband Kashyap. And what is the most one peculiar thing about the characteristic of Kashyap which she spoke? Now these yajnas are different. This is 5 yajna which we discussed. A side question. Yeah, that is different thing. I'm saying what she spoke about Kashyap, which is specific. He is equal to both demons and devotees. Like in Supreme Lord, you are also equal to both. But still, as Supreme Lord, even though equal to everybody, is always favor his own devotees. So similarly, now you should favor Indra. So, and then what was the response of Kashyap Muni? How to overcome the suffering of household life. What is Kashyap's suggestion? Follow devotional service, take shelter of Supreme Lord. He will only solve your problem, nobody else. But still, Aditi was not satisfied. Then he told her about the Payovrta, which who told this Payovrta to Kashyap? Brahmaji during, at the time of creation, he asked, you have to do like this. So this is some of the summary yesterday what we discussed, and a couple of days we discussed. Today we starting verse number 22. So verse 22 to 62, right, from here. The Kashyap described about the Payovrta sacrifice. Shri Aditirvacha Enaham Vidhina Brahman Upasthit Jagat Patim Yatha me Satya Sankalpo Vidadyat Swam Manoratham. Srimati Aditi said, O Brahman, tell me the regulatory principle by which I may worship the Supreme Master of the world, so that the Lord will be pleased with me and fulfill my desires. Okay? Srila Prabhupada's purport. It is said, man propose, God dispose. Thus the person may desire many things, but unless these desires are fulfilled by the Supreme Personality of Godhead, they cannot be fulfilled. Fulfillment of desire is called Satya Sankalp. Satya Sankalp. Here the word Satya Sankalp is very important. So are we in the same verse or different verse? Same verse? So this is Yatha me Satya Sankalpo. Yes, Satya Sankalp. So Srila Prabhupada started the purport on the word Satya Sankalp. So Srila Prabhupada selected the one word because Supreme Lord is only Satya Sankalp. भगवान को सत्य संकल्प कहते हैं, वो जो सोचते हैं वो हो जाता है. सत्य संकल्प शक्ति
ये भगवान की विशेष विभूति है। तो प्रभुपाद ने इसलिए सत्य संकल्प को विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ के लिए लिया है। Here the word Satya Sankalp is very important. Aditi placed herself at the mercy of her husband so that he would give her direction by which to worship the Supreme Personality of Godhead, so that all her desires should be fulfilled. A disciple must first decide that he should worship the Supreme Lord, and then the spiritual master will give the disciple correct direction. इस लाइन को आप एक्सप्लेन कीजिए। ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। ये क्या है, क्या लग रहा है इसको, प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी? You should have the intense desire to go to the Supreme Personality of Godhead. यहाँ लिखा क्या है देखो। First of all, desire should be there for devotee that I want to worship the Lord with sincerity and with dedication. That is there, only then Guru will instruct him how to do that. श्लोक आता है तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय। वो है क्यों गुरु करना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। उस श्लोक में ये दो बातें हैं। यहाँ ये है कि आप दीक्षा लेते हैं, लेकिन आपके मन में अगर डीटी वर्शिप की इच्छा हो तो फिर आप गुरु जी के पास जाके कहो कि आप कृपा करके मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए कि मैं घर में विग्रह की स्थापना करके पूजा करूं। और गुरु का एक काम क्या है विशेष? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। गुरु का काम है हमको श्री विग्रह की पूजा करना सिखाना। इसका मतलब है कि कोई भी अपने मन से घर में विग्रह ला के पूजा करे तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं है। इच्छा पूजा करने की हो तो गुरु से अनुमति लेके फिर पूजा करे। ये बात यहाँ कही गई है। इसका मतलब कि आदित्य की इच्छा है कि मैं पूजा करनी चाहती हूँ, तब वो अपने पति को गुरु के समान मान के कहती है कैसे करूँ जरा बताइए, हमें इसका रास्ता बताइए कैसे पूजा करूँ। इसका एक दूसरा एंगल हमारे पास है। कभी कभी बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हमसे किसको गुरु करें। तो हमारा उनको उत्तर है क्यों गुरु करना चाहते हो। हम पूछते हैं क्यों गुरु करते हो भाई, क्यों गुरु करना है। तो क्या उत्तर होना चाहिए आपके विचार में? आम आदमी क्या उत्तर देगा? हाँ, गुरु के बिना गति नहीं है। ठीक है, सबने गुरु किया, हम भी करें, गुरु के बिना गति नहीं है। जवाब ये होना चाहिए मुझे भगवान को पाना है, भगवान के प्रेम को पाना है, भगवान को पाना है। आपका क्या विचार है? ये जवाब सही है गलत है? हाँ जी, गुरु क्यों करना चाहिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की। अब हम उनको कहते हैं जिसकी आपको प्राप्ति करनी है वो तुम्हारे हृदय में बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ जी, और गुरु के भी हृदय में बैठा है कि नहीं बैठा है? तो जाके सीधा भगवान को प्रार्थना करो, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, अब मुझे आपको ऐसा कोई आपका प्रिय भक्त बताओ जो आपकी सेवा में लगा सके। आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा आपके भाव को सुन लेंगे। और गुरु जिसको आपका गुरु बनाना है उसके हृदय में भी तो बैठे है ना परमात्मा। उसको कहेंगे जाओ इसको मेरे को पाने की शिक्षा दे दो। ये है वास्तव में मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म है आपके भगवत गीता के श्लोक की
कि श्रद्धा मैं देता हूँ, पूजा देवता की करते हो, देवता फल देते हैं, वो भी मेरी इच्छा से देता है। कैसे? आपने देवता की पूजा करने का सोचा, मैंने आपके दिल में देखा, मैंने आपको श्रद्धा दी, आप देवता की पूजा करो। देवता को क्या पता क्या देना है, मैं उसके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा, उसको कहूँगा इसको ये दे दो, तो काम तो मैं करता हूँ ना परमात्मा के रूप से। तो वास्तव में ऐसे इसके ऊपर तो बहुत अच्छी एक प्रभुपाद का हाउ द प्रभुपाद इज ग्रेट करके 1-2 वॉल्यूम में किताब है, उसमें एक कहानी लिखी हुई है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप सबके लिए जीवन में, अगर किसी भक्त के साथ कोई एक कहा जाए कि सो कॉल्ड फाइट हो जाए, डिफरेंसेस हो जाएं, और आप में ये यू डोंट हैव ए गट्स टू गो टू हिम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो आप सीधा भगवान को प्रार्थना करो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने इसका अपराध कर दिया है, अब मुझे हिम्मत नहीं है इसके पास जा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे हृदय में देख सकते हैं मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आप भी तो उसके हृदय में हैं, उसको जाके हमारी तरफ से प्रार्थना करो कि वो उनके हृदय से ये द्वेष निकाल दे। हमने कई बार मैनेजमेंट में किया है। मैनेजमेंट में बहुत ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें आपको किसी न किसी को तो कुछ कहना ही पड़ता है, तो उसके बाद विशेष रूप से अब आपको वो स्तर पे नहीं है, हमारे को तो ऐसी समस्या होती थी कि 2-3 गुरु सन्यासी के बड़े प्रोग्राम में आते थे, किसी एक को आगे किसी को पीछे, किसको कैसे करे, कोई नाराज हो जाता था। तो फिर ये एक प्रार्थना हमारी थी, देखा हमने 2-3 महीने में सारे डिफरेंसेस अपने आप खत्म हो जाते हैं, सारे डिफरेंस खत्म हो जाते हैं। घर का झगड़ा है तो भी ऐसे करो। वो प्रभुपाद जी का जो किताब है हाउ प्रभुपाद इज ग्रेट, उसमें एक कथा ऐसी लिखी हुई है कि लड़की थी छोटी, भगवान की घर में पूजा करती थी, शादी हो गई, बड़ी हो गई, अपना ठाकुर जी साथ ले गई, पति अच्छा था, प्रेम करने वाला, सास बहुत सख्त थी, क्योंकि सांस शब्द जहाँ से निकला है ना वहाँ सांस बंद हो जाता है। पंजाबी में सांस की डेफिनेशन क्या है, किसी ने कहा, सुना है आपने? सांस चंगी भली नहीं तो दीवार पे टंगी भली। सो बेचारी दुखी थी, पानी भरने के वहाँ रो रही थी। एक साध्वी ने देखा कि बेटी रो क्यों रही हो? पहले ऐसी मेरी समस्या है घर में, मैं चाहती हूँ पर एक परिवार के साथ रहूं, लेकिन सास बहुत सख्त है। बोला बेटी तुम्हारा गोपाल तो तेरे साथ आया है ना? बोला हाँ आया है। बोला वो तेरी सास के हृदय में भी रहता है ना? बोला रहता है। बोला जाके अपने गोपाल को बोलो मेरी सास को मेरी माँ बना दो। इसने जाके रोज गोपाल को प्रार्थना की, गोपाल मैं तो इस घर में मेरी तो माँ यही है जो घर छोड़ के आई। 5-7 दिन के बाद वो सास का मन बदल गया, वो माँ की तरह व्यवहार करने लग गई। एक ये कथा लिखी हुई है प्रभुपाद हाउ प्रभुपाद इज ग्रेट, ये किताब है उसमें। तो ये इसको देख के मेरे को ये आया कि ये आपको प्रैक्टिकल जीवन में कहीं भी किसी भक्त के साथ डिफरेंसेस हो जाए तो परमात्मा का माध्यम लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो यहाँ अपन ये एक सिद्धांत ये है कि आपको पूजा करनी है भगवान की, तो आप गुरु जी को प्रार्थना कीजिए कि हमको पूजा करने की विधि बताइए और अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। विधि बताइए, अनुमति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्या वो किताब है बड़ा, मेरे पास कहीं से आते हैं, हमारे पास तो किताब आते रहते हैं, मालूम नहीं हमने किताब हम खरीदते नहीं, आते हमारे भगवान की इच्छा से आ जाते। हाउ ग्रेट इज प्रभुपाद ऐसे करके उनमें स्टोरीज हैं, मिल जाएगा कहीं न कहीं ढूंढोगे तो। One cannot dictate to the spiritual masters, just as patient cannot demand the physician prescribe a certain type of medicine. अब प्रभुपाद जी कहते हैं आप गुरु को जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये मूर्ति लेनी है, इसकी मैं पूजा करूंगा, या ये मेरे को तो नहीं। मेरे को प्रार्थना आप जो उचित समझें, जिसके मैं लायक हूँ उसकी सेवा करने के लिए मेरे को अनुमति दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो ये भाव और एनालॉजी दी हुई है। आपसे ऐसे पूछा जाइए कि
डॉक्टर को मरीज नहीं कह सकता है कि मुझे ये दवाई लिख दो, ये परपट में कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो परपट में क्यों लिखा है, क्योंकि गुरु को हम डिक्टेट नहीं कर सकते जैसे पेशेंट डॉक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये एक फिलोसॉफिकली प्रिंसिपल है। Here is the beginning of the worship of the Supreme Personality of Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita, Chaturvidha bhajante mam janha sukriti arjuno jigyasu nartarthi jnani cha bhartrashava. O best of the Bharata, 4 kinds of pious men render devotional service unto me. The distressed, desire of wealth, inquisitive, and he who is searching for the knowledge. Aditi was Arat person, Arat a person in distress. ये आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है आरत भक्त का। इन चारों के एग्जाम्पल दीजिए आप। अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनका एग्जाम्पल दीजिए। ध्रुव महाराज अर्थार्थी, ठीक है। गंज अब आज नया आपको आरत मिला। देखो आदिति आरत है क्योंकि उनके पुत्र आहत है, तो इसका मतलब आदिति का वर्शिप शुद्ध भक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है क्योंकि अपने पुत्रों के हित के लिए ये पूजा कर रही है, तो आरत भक्त है। ये कौन सी कैटेगरी में भक्ति में आएंगे? आरत या अर्थार्थी ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इसको कौन सी भक्ति कहते हैं? मिश्रित भक्ति। कौन सी भक्ति कहते हैं? किससे मिश्रित है ये भक्ति? ये है कर्म मिश्रित भक्ति। वैसे मिश्रित भक्ति 2 प्रकार की है। कौन सी कौन सी? प्रधानीभूता, ये प्रधानीभूता कर्म मिश्रित भक्ति। तो क्या ये उत्तम भक्ति है क्या? नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में लिखा है ये उत्तम भक्ति नहीं है, परंतु कोई भी बिना पायस एक्टिविटीज के भक्ति में आगे नहीं आ सकता। प्रभुपाद ने वहां लिखा है। ये उत्तम भक्त कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये उत्तम भक्त कैसे हो सकते हैं? बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। भाई ना, कैसे उत्तम भक्त हुआ ध्रुव महाराज? नारद के संग से, या भगवान की कृपा या भक्त की कृपा से ये उत्तम भक्त हो सकते हैं। तो आदित्य भी आगे कश्यप की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान बेटा होंगे फिर तो भक्ति शुद्ध हो जाएगी ना, तो उत्तम भक्त बन जाएंगे। उत्तम है नहीं, ठीक है। दूसरे उदाहरण नहीं दिया आपने, जिज्ञासु का उदाहरण नहीं दिया। नैमिषारण्य के ऋषि जिज्ञासु है, और ज्ञान चतुष्ट कुमार और सुखदेव गोस्वामी उस श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब सामान्य कोई भी नहीं है इसमें से। हाँ, ये बहुत ऊपर के स्तर के। प्रायः हम जब सेवा पढ़ाते हैं भक्ति शास्त्री वालों को, तो वो समझते हैं हम भक्तों की लिस्ट में। अरे नहीं, अभी भक्तों की लिस्ट में नहीं है, अभी हम एंट्री भी नहीं हुई है। आदो श्रद्धा के स्तर के ऊपर सब स्ट्रगल कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो। अनर्थ निवृत्ति पार करने तक बहुत बड़ा लंबा सफर लगता है, और तब तक कनिष्ठ भक्ति रहता है। अनर्थ निवृत्ति के तक पहुंचने वाला मध्यम का अधिकारी होता है। तो वास्तव में ऐसे कि भक्ति साल भले ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारा अनर्थ निवृत्ति में गाड़ी जो है, तो अनर्थ निवृत्ति का स्तर कैसा है? जैसे कीचड़ में गाड़ी फंस जाए, इंजन भी चल रहा है, तेल भी जल रहा है, व्हील भी घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे। हम हरे कृष्णा जप रहा है, जोर भी लग रहा है, मेहनत भी कर रहे, लेकिन खड़े उधर ही है, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो ये स्थिति हमारी अनर्थ निवृत्ति तक नहीं, तो इस स्थिति में अटके रहेंगे। अब देखिए, आदित्यवाद रे आरत भक्त, ये अच्छा एग्जाम मिला आर्थ भक्त का कि नहीं मिला? हा? एक अच्छा एग्जाम्पल आदित्य आरत भक्त है। तो क्या दिति आरत भक्त थी क्या? जब वो कश्यप को कह रही थी कि
मेरे को ऐसा बेटा जो जो इंद्र को मारे, आरत भक्त में नहीं कहा है उसको, वो एनिमियस थी, वो ईर्ष्या कर रही थी इंद्र से, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए नहीं, इंद्र को मारने के लिए पूजा मांग रही थी। तो वो आरत भक्त नहीं थी, वो इसके लिए वो ईर्ष्यालु थी, उसके अंदर द्वेष था, इसलिए उसको वैष्णव व्रत दिया। कश्यप ने उसको वैष्णव व्रत दिया ताकि महज 1 साल में ये इसके अंदर भगवान की भक्ति करेगी, वैष्णव बन जाएगी, तो इसका द्वेष खत्म हो जाए। और हो गया, और इंद्र के साथ अच्छा उनका रिश्ता हो गया, और बेटे भी दैत्य न हुए, देवता हो गए, मरुतगण। तो ये अर्थ दोनों में अंतर है। अब देखो प्रभुपाद ने कितना सोच विचार के इसको आर्त भक्त का है, क्योंकि गई कहां था तो उसको तकलीफ, लेकिन तकलीफ के निवारण के लिए कहां गई, भगवान के पास, इसलिए आर्त भक्त है। भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम, सत्य संकल्प मीन्स लॉर्ड बाय whom was come true। अब देखो सत्य संकल्प का यहां अर्थ है भगवान सत्य संकल्प है, जिसकी कृपा से वो जो सोचते कहते हैं वो हो जाता है, इसका मतलब वही हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्स, आदेश त्वं द्वेज श्रेष्ठ विधिं तत उपध्वनम् अशोतुष्यति वे देवा सीद्यन्तः सह पुत्रकैः। O best of the Brahman, kindly instruct me in the perfect method of worshipping the Supreme Lord, personality of God in devotional service, by which the Lord may very soon be pleased with me and save me along with my sons from the most dangerous condition. Srila Prabhupada's purport. Sometimes less intelligent men ask whether one has to approach Guru to be instructed in devotional service for spiritual advancement. Prabhupada, वो इस प्रसंग से लेके कॉमन लोगों का विचार कि हमको गुरु की जरूरत है क्या, लोग ये पूछते हैं क्या गुरु की जरूरत है क्या? The answer is given here. Indeed, not only here but also in Bhagavad Gita, where Arjuna accepted Krishna as Guru, Shishyastyam sadimam tvam parpara. The Veda also instruct tad vijnanartham evam gurumeva vigacheta. One must accept a guru for proper direction if one is seriously inclined towards advancement in spiritual life. सामान्य लोगों को क्या उत्तर देंगे? ये शास्त्र की बातें करेंगे, वो तुम शास्त्र को तो वो सुना होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते, इसलिए प्रभुपाद ने कहा अनलेस इंटेलिजेंट पर्सन। तो सामान्य लोगों को क्या उत्तर देंगे आप? भाई ये सब आप बोलेंगे, बोला ये हमें तो पता नहीं है, कोई शास्त्र तो वो पढ़ा होता तो ऐसा कहता ही नहीं। सामान्य लोगों को उत्तर आपका क्या है? जनरली प्रचार में जाओ तो क्या उत्तर दोगे, बोलिए। कुछ भी सीखना होता है तो हमको टीचर चाहिए भाई। एक का सीखा और ए बी सीखा, कपड़े सीना सीखा, रोटी चलबलाना सीखा, किसी से सीखा है? जब भौतिक चीज़ें ही सीखने के लिए कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए, तो फिर क्या आध्यात्मिक चीज़ें बिना किसी के सिखाने के सीखी जा सकती हैं क्या? एक तो ये लॉजिक है अच्छा, और दूसरा वैसे दूसरा आम आदमी को समझाना। ये क्या कहा प्रभु जी ने? आतंकवादी बनना है तो गुरु चाहिए। आतंकवादी बनने के लिए भी गुरु चाहिए। ठीक, ये भी सही है। हाँ, ये मैं आंसर सुन रहा हूँ। भगवान जब धरती पे आते हैं
तो वो भी जाके गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो क्या तुम भगवान का से बड़ा हो क्या? ये क्या ऐसा लॉजिक है जो सामने वाले को थोड़ा सा उसका हिलाएगा उसको क्या भाई भगवान आए थे, रामचंद्र वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, चैतन्य महाप्रभु पढ़ने के लिए गए, तो सारे भगवान गुरु करते हैं, क्या तुम भगवान से बड़े हो क्या? तुम नहीं करोगे। तो ये ऐसा स्ट्रांग लॉजिक है कि जिसके लिए सामने वाले को और भी कुछ कारण कुछ निकाल सकते, लेकिन ये यहाँ है, ये आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? The Lord says that one must worship Acharya, who is representative of Supreme Personality of Godhead. Acharyam mam vijaniyam. One should definitely understand this. In Chaitanya Charitamrita, it is said that the Guru is the manifestation of Supreme Personality of Godhead. कहाँ लिखा है चैतन्य चरितमृत? खैर आपने पढ़ी नहीं है, वो तो भक्ति सर्वभौमा में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये कहीं आपको दिमाग में आता है कि लिखा है ये चैतन्य चरितमृत में कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है? ढूंढिए उसको, माइक्रोफोन दे ताकि सबको फायदा हो भाई। क्या प्रभु? वो तो दो है, एक नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसादे वाले में दो, गुरु और प्रसाद क्या है? और वन में होना चाहिए, क्योंकि गुरु को वही सब्जेक्ट। हाँ, गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेण प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण रूप। ये है, लिखो, नोट करके रखो, क्यों लिखा है यहाँ, तो आपको ढूंढना, ये आपका कर्म, ये आपके स्टडी का पार्ट है कि अगर यहाँ लिखा है तो आपको ढूंढना, नहीं तो आप समझ के नहीं पढ़ रहे। आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 45। गुरु के रूप में श्री कृष्ण शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, ये इसका अर्थ हुआ ना। According to the deliberate opinion of all Hindu scripture, the spiritual master is not different from Krishna. Lord Krishna, in the form of the spiritual master, delivers his devotees. ठीक है, 1.45। ठीक है, तो ये देख लिया और अच्छी बात है। Therefore, according to all the evidence given by the Shastra and by the practical behavior of the devotee, one must accept a guru. तो शास्त्र का एविडेंस के साथ प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ डिवोटी लिखा है। प्रभुपाद कोई शब्द लिखते हैं उसका कोई तो माना होगी, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ डिवोटीज, ये जब शब्द लिखा है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे अपने जीवन में? क्यों लिखा है प्रभुपाद ने? इसके बगैर भी तो सेंटेंस पूरा होता है ना, देखो हो जाता है कि नहीं होता है। Therefore, according to the evidence given by the Shastra and by the Shastra, one must accept a guru. जरूरत है इस लाइन के बीच में? हाँ भाई, इसके बगैर सेंटेंस पूरा हो सकता है कि नहीं? हाँ, निकाल के देखो, बाय दी प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ डिवोटी, निकाल के सेंटेंस पढ़ो, पूरा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्यों लिखा है? प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ डिवोटी जब आपको कहना हो तो क्या दिमाग में आता है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये इसलिए लिखा है, बिहेवियर ऑफ दी शिष्य क्या होना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम्बल इंक्वायरीज होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, शरणागत का भाव होना चाहिए, सबमिशन होनी चाहिए। ये जो लाइन लिखी है, ये इसकी दिखता नहीं है, लेकिन आखिर सोचना चाहिए प्रभुपाद ने ये लाइन लिखी क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? इसके बगैर सेंटेंस पूरा पढ़ा है। तो शिष्य के भी कुछ दायित्व है।
गुरु के भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री, ऐसे जो आपको श्लोक पढ़ रहे थे उसमें ये लिखा है नीचे, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री, उसमें ब्रह्मश्रुति ब्रह्मनिष्ठ, इसका मतलब वेद को सुना है। ब्रह्म श्रोत्री का मतलब वेद को सुना है, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब भगवान के अंदर पूरी निष्ठा है। एक ब्रह्म का अर्थ है वेद, वो जो ये है गुरु के लक्षण। ओके। Aditi accepted her husband as the guru so that he would direct her how to advance in spiritual consciousness, devotional service by worshipping Supreme Lord. ठीक है। Verse number 24. Sri Kashyap Uvacha. एतन्मे भगवन् पृष्टः प्रजाः कमः क्या प्रजा कमस्य पदं जः यदः ते प्रवक्ष्यामि वृतं केशवतोषणम्। Sri Kashyap Muni said, when I desired offspring, प्रजा, प्रजा मतलब पुत्र, I placed inquiry before Lord Brahma, पद्मजा, पद्मजा है ना ऊपर लिखा, ब्रह्मा के लिए क्या लिखा है, पद्मजा ना, right, who was born from the Lord. Now I shall explain to you the same process Lord Brahma instructed me. ऐसे कहने की क्या जरूरत है कश्यप को, सीधा कह सकता है सुनो पत्नी हो ना, आज्ञा कर रहा हूं ऐसे करना, कह सकता है कि नहीं? ऐसे क्यों कह, ये काय के लिए बता रहा है पूरा, एवं परंपरा प्राप्तम, ये एवं परंपरा, अपनी परंपरा बता रहा है, मैं जो बता रहा हूं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ब्रह्मा जी ने सुनाया है। ये श्लोक आकर ये लिखा है तो इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा ना भाई। सीधा कह सकता ना कोई, वो तो ऐसे कह रही है, वो थोड़ी कह रही है कि आप कहाँ से सीख के आए हो, वो तो सीधा पूछ रही है। ऐसा कहीं और है क्या भागवत में आपने पढ़ा है कि सुनाने वाले से ने सुनाने से पहले अपनी परंपरा सुनाई? किसने, कौन, किसका नाम ले रहे? सुखदेव गोस्वामी ने को कहा है कि मैं ब्रह्मनिष्ठ था, मैंने को भगवान की लीलाएं ने आकर्षित कर लिया। सनक अपने सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं, मेरे को जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा है मैं सुन के आया हूँ वही सुनाऊंगा, लेकिन मैं और कुछ पूछना चाह रहा हूँ जो आपने भागवत में, हाँ 10 तक नहीं जाओ आपने जो, हाँ बहुत दूर उधर नहीं जाओ, मैं आपने पढ़ चुके हैं उसमें, आप सबको पता है, अभी आपको याद नहीं आ रहा है। तीसरे स्कंद में मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूं, मैत्रेय विदुर को बताते हैं प्रश्न से उत्तर कि वो संक्रषण से कौन सीख के आया था? चार कुमारों से कौन सीख के आया? सांख्यायन मुनि नहीं, वो सांख्यायन मुनि ने किसको सुनाया? मेरे गुरु पराशर को, मैंने पराशर से सीखा, उस वक्त बृहस्पति भी सुन रहा था। ये परंपरा है कुमार संप्रदाय, 4 कुमार, उसने अपनी परंपरा भागवत की सुनाई, फिर विदुर के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो ये एथेंटिसिटी का पता लगना चाहिए ना अपनी, ये ठीक है ना? तो जो मैं पूछ रहा था, मैं इसी के विषय में पूछ रहा हूँ, और जगहों पे बहुत जगह मिल सकता है, लेकिन आप पढ़ के आए उसमें इसने अपनी परंपरा बताई है। सुखदेव ने भी बताया है कि मैं व्यासदेव से सीखा हूँ, मैंने 18,000 श्लोक व्यासदेव के पास जाके सीखे हैं, और सूता ने भी बताया है कि मैं सुखदेव से सुन के आया हूँ। लेकिन ये पूरी परंपरा है, वो एक नाम लिया है, ये पूरी परंपरा बताता है। कौन? मैत्रेय ऋषि।
Same process Lord Brahma instructed me, by which Keshav, the personality of Godhead, is satisfied. Keshav Toshanam. Srila Prabhupada's purport. Here the process of devotional service is further explained. Kashyap Muni wanted to instruct Aditi in the same process recommended to him by Brahma for satisfying the Supreme Personality of Godhead. This is valuable. Guru does not manufacture a new process to concoct, to instruct the disciple. The disciple receives the Guru, an authorized process received from the Guru, from his Guru. This is called disciplic succession. एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदु. अब जो परपट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा पड़ा है. मैं परपट को अभी नहीं देखा, लेकिन उसको लिखने से अपने आप जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए कि ये क्यों पढ़ा है यहाँ. इसका कोई तो कारण होना चाहिए ना. Therefore, to approach the bona fide guru or spiritual master is essential. The bona fide Vedic system of receiving the process of devotional service by which the Supreme Person of Godhead is pleased. Therefore, to approach the Guru. Okay. Bona fide spiritual master is he who has received the mercy of his Guru, who in turn has received. ये हमने पढ़ा ना. This is called parampara system. Nowadays, there are so many rascal gurus. अभी गुरु और रास्कल दोनों कैसे हो सकता है? गुरु भी हो, रास्कल भी हो, कैसे हो सकता है? बदमाश गुरु, इसका मतलब हुआ बदमाश गुरु. भाई गुरु कैसे बदमाश है? लेकिन आजकल हम देखें वाकई बहुत बदमाश गुरु जेल में पड़े. सो रास्कल गुरुस who manufacture their mantra as a process for material advancement, not a spiritual advancement. Still the mantra cannot be, अब दूसरी बात कह रहे हैं प्रभुपाद, still the mantra cannot be successful if it is manufactured. Mantra and the process of devotion have practical power, special power, provided by they are received from the authorized person. कहाँ से लिखा है प्रभुपाद ने ये? क्या है वहाँ? ये श्लोक तो अन्य स्थान से है. संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला. ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये शास्त्र का अथोराइज एक मंत्र है कि संप्रदान विहीना, जो संप्रदाय विहीन है, मंत्र निष्फला, वो मंत्र कोई फल नहीं देगा. इसका मतलब कोई मंत्र अगर किताब में लिखा हुआ आप पढ़ना शुरू कर दो तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा. एक गुरु शिष्य को मंत्र दे रहा था तो दूसरा शिष्य कोई खड़ा था उधर, उसने सुन लिया, बोला मैंने भी गुरुजी सुन लिया. गुरुजी ने कहा किसी को कोई बंदूक की गोली मारता है, आवाज 100 आदमी सुनता है, मरता हुआ जिसको गोली लगती है. तुमने सुनना तो क्या होगा? मैंने जिसको दिया है उसी के ऊपर काम करेगा. ऐसे सुनने से काम नहीं होता है. तो ये है कि मंत्र असल में गुरु मंत्र माला के ऊपर जग के देता है, मतलब प्यूरिफाई करके देता है मंत्र को. इसको हम कहते हैं फास्ट फूड है. नहीं तो हमको सिद्ध करने में 10 साल लग जाते मंत्र को. उन्होंने सिद्ध किया हुआ मंत्र हमको दिया है. तो ये जो गुरु से मंत्र मिलता है तो मंत्र ये मध्यलीला में है. कहाँ है मंत्र? हाँ, संप्रदाय विहीने मंत्र निष्फला. कहाँ है देखो ये. हाँ तो ढूंढ के निकाले ना, फिर सामने हो तो अच्छा है. कुछ लोग क्या कहते हैं कि मंत्र में पोटेंशियल तो है ना. हाँ, मंत्र में पोटेंशियल तो है ना. मंत्र में पोटेंशियल तो है ना. नहीं, मंत्र में पोटेंसी, महामंत्र पोटेंट है. वो किसी भी पुरुष चरण का इंतजार नहीं करता है, वो जपने वाले को जरूर फायदा देता है. लेकिन ये जो पूजा के मंत्र है विशेष, या जो दीक्षा के मंत्र है,
उन मंत्रों को परंपरा से लेने से ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे किताब के पढ़ने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। ये पद्म पुराण में है। पद्म पुराण का है, मुझे लग रहा है पद्म पुराण शंकर पार्वती को कहते होंगे, मैं तो मुझे ऐसे लग रहा है। लिखा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में क्या लिखा है? पद्म पूरा श्लोक? लिख रहे हैं पद्म पुराण में। श्लोक कितना आधा है, पूरा है? मंत्र है प्रभु ये। पूरा संप्रदाय विधिना के मंत्र के निष्फला इतना ही है। संप्रदाय बिना है मंत्र के निष्फला। जितना मेरे को याद है। और कुछ आपके पास कुछ है क्या, निकला है क्या? क्या कहाँ से निकला है? गूगल बाबा जी से। गूगल गुरु से। गूगल गुरु क्या कहता है, लाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संप्रदाय वीनाः ये मंत्र से निष्फलाः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायाः चतुर संप्रदाय। इसका मतलब कल युग में 4 संप्रदाय होंगी, उनसे लोग ये मंत्र तो काम करेगा, दूसरा मंत्र काम नहीं करेगा। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षति पावनः चत्वारस्ते कलौ भवेय। या कोई भी मंत्र जो शिष्य परंपरा में नहीं आता वो निष्फल माना जाता है। इसलिए 4 दिव्य व्यक्ति कलयुग में स्थापित शिष्य विद्यालयों में प्रकट होंगे। इन 4 वैष्णव संप्रदायों के संस्थापक लक्ष्मी या श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक ऋषि है, और कलयुग के आचार्य जो इनके पंक्तियों का पालन करते हैं उड़ीसा के पवित्र शहर पुरुषोत्तम में दिखाई देंगे। ये श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षति पावनः चत्वारस्ते कलौ भव्य हे उत्कले पुरुषोत्तम अतः कलौ भविष्यन्ति। अब ये जो है पद्म पुराण का पूरा श्लोक है। पद्म पुराण में परंपरा के बारे में ये लिखा है। अब क्या जो बात लिखी है वो स्पष्ट सबको समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है। इसका मतलब 4 वैष्णव संप्रदाय के मंत्र परंपरा से आते हैं, वो प्रमाणिक है। अच्छा जी, आगे अब कश्यप जी क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं इन दी ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ मंथ ऑफ फाल्गुन February and March for the 12 days ending with Dwadashi one should observe the vow of sustaining only on milk and should worship the lotus-eyed Supreme Personal Godhead with devotion. भक्त्या परमयान्वितः अरविंदाक्षः अर्चयेद अरविंदाक्षः। कमल नयन भगवान का भक्ति से पूजन करे। तो कब वयोव्रत शुरू होता है? फाल्गुन महीने में, चांदनी पहली तिथि से लेकर द्वादशी तक। कभी करना चाहिए भाई, नहीं परपट। Worshipping the Supreme Lord Vishnu with devotion means following अर्चना मार्ग। प्रभुपाद कहते हैं विष्णु की पूजा कैसे करेंगे? अर्चना मार्ग, मतलब वर्शिपिंग ड्यूटी फॉर्म। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। One should install the deity of Lord Vishnu or Krishna and worship him nicely by dressing him, decorating him with flower garlands, and offering him all kinds of fruits, flowers, and cooked foods, nicely prepared with the ghee, sugar, and grains. One should also offer a flame, incense, and so on, while ringing the bell as prescribed. This is called worship of Lord. अब अर्चना का ये सारा, कितने उपचार की पूजा होती है अर्चना की? 16 उपकार। 16 मतलब 16 प्रकार के उपचार होते। और कभी संक्षेप है तो 5 उपकार, कभी कहते संक्षेप में 5 उपकार भी होती।
तो 16 ये अर्चा विग्रह की पूजा की बात हो रही है। ओके जी, आगे क्या लिखा है देखिए। Here it is recommended that one observe the vow of subsisting only on drinking milk. This is called Payovrta. As we generally perform devotional service on Ekadashi by not eating grains, it is generally recommended that on Dwadashi one not consume anything but milk. ये क्या है प्रभुपाद कहते हैं, जब ये पयोव्रत करेंगे तो एकादशी के बाद दूसरे दिन भी अन्न नहीं खाना, दूध ही पीना। इसका मतलब ये हुआ ना, पयोव्रत में एकादशी आ जाएगी ना, तो एकादशी के दूसरे दिन अन्न नहीं खाना है, दूध पीना। इसका अर्थ यही है। ऐसे एक अनुष्ठान है तो पारण उसके अंदर है, तो त्रयोदशी को हुआ, ऐसा लग रहा है। ऑन द्वादशी one not consume anything but milk. Payovrta and archana devotional service to the Lord should be performed with a pure devotional attitude, bhaktya. Without bhakti, one cannot worship the Supreme Personality of Godhead. Bhaktya mam abhijanati yavan chasmi tattvata. If one wants to know the Supreme Personality of Godhead and be directly connected with Him, knowing what he wants to eat and how he is satisfied, one must take to the process of bhakti. As recommended here also, bhaktya paramayan vitaha, one should be surcharged with the unalloyed devotional service. Payovrta means to perform vow taking only milk. Verse number 26. हाँ जी, जिसको दे रहे हैं उसका ही काम करेगा। और हम जनरली गायत्री हम करते हैं, बल्कि गायत्री को हम दावशान में नहीं करना चाहिए। गायत्री उसको मतलब ऊंची आवाज से नहीं करना चाहिए। इसको वैसे ये मंत्र सारे उपांश हुए, इससे ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए, कभी सिर्फ होंठ हिलने चाहिए। हाँ, तो कभी कभी जैसे गुरु हमको गायत्री देते हैं तो दूसरे भी हम देखते हैं, लोग भी सुनते हैं। गुरु के मुख से तो सुनना है। जैसे बाकी लोग जैसे सुनते हैं कहीं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इस गायत्री से? गुरु के मुख से अपने कौन से उल्टे कान में सुनना होता है, लेफ्ट कान उल्टे में सुनना, वो श्रोत्र है, वो तो विधि है। और उस विधि से लेने के बाद आपको बड़ी आवाज में नहीं कहना है जब तक आप गुरु न बन जाओ। आप गुरु बन जाओ फिर अपने शिष्य को कान में जोर से बोल सकते हो, उससे पहले नहीं। और ये जो लाउड स्पीकर पे सारा गायत्री मंत्र जपते हैं, कोई इसका फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। असल में हर मंत्र का एक इष्ट देव होता है, एक शक्ति होती है। जैसे भगवत गीता के लिए लिखा है, ओम से श्रीमद् भगवत गीता माला मंत्र से भगवान वेदव्यास ऋषि, इसका ऋषि है वेदव्यास, श्री कृष्ण आराध्य देव, अनुष्टुप छंद उसका एक छंद होता है। और हाँ, श्री कृष्ण आराध्य देव अनुष्टुप छंदस अशोचानंद शोचित्वम प्रगावादांश भाष्य इति बीजम सर्वधर्मान परिच माम एकम शरण इति शक्ति। ये पूरा भगवत गीता का मंत्र है। ये इसमें ऐसे भागवत हम पढ़ते हैं ना, ये जो मंत्र एक पढ़ते हैं, कौन सा, नारायण नमस्कृत्य नरम से, ये वास्तव में इस भागवत का ऋषि नारायण ऋषि से लेकर पुरुषोत्तम भगवान का आराधना करना, व्यासदेव इसका जो ज्ञाता है, सरस्वती इसकी शक्ति है, इसका तात्पर्य विष्णु चक्र ठाकुर का इस श्लोक का पढ़ना। कौन से श्लोक का? इसका आप कमेंट्री पढ़ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की,
ये है वास्तव में भागवत का गुरु, शक्ति, आराध्य देव, ये सब इस मंत्र में है। इसलिए जब तक ये नहीं पढ़ा जाता तब तक मंत्र अपना काम नहीं करता। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसका नारद ऋषि है। इसमें ओम शक्ति है, वासुदेव पूजनीय देव है। ऐसे हर मंत्र का ऐसे होता है। ऐसे गायत्री मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, उसने उसको साक्षात्कार किया था। वो जब तक असल में ये सिद्धांत ये है कि इन मंत्रों, इसलिए मंत्र निष्फल है क्योंकि उसके अंदर पता ही नहीं है इसका कौन ऋषि है, कौन इसका जो है शक्ति है। ये परंपरा में तो क्या है, पहले से हमको जो फास्ट फूड की तरह बना बनाया देते, इसलिए हमारे पास काम करने जैसा है, क्योंकि ऊपर से इसको जैसे फास्ट फूड बाजार से लाओ, पकाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे को तो ऐसे बना बनाया मिल जाता है परंपरा में। वैसे ये सब स्वयं को करना पड़ता है। ऋषि मंत्र दृष्टा होता है, ऋषि का मतलब है मंत्र दृष्टा। आगे पढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए, इस व्रत को कैसे करना चाहिए? इफ द dirt dug by the boar is available, वो जो वाराह के चरणों की धूली को लेना चाहिए। ऑन द डे ऑफ डार्क मून, इसका मतलब व्रत शुरू करने से पहले अमावस्या रात को। वन शुड स्मीयर दिस dirt on his body, सारे शरीर पे लगाए। देन bath in the morning flowing river, फिर जाए चलती नदी में स्नान करें। While bathing one should chant the following mantra। ये तो शुक्र यज्ञ रूप होता है, वाराह यज्ञ रूप है। वाराह को यज्ञ रूप कहते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा है 3रे स्कंद में, यज्ञ रूप है। और तब ये करना चाहिए। This describes the action on the day before beginning the war. On the dark moon day, one should smear the body with the earth dug by the boar, if available, and bath in the river if available. The phrase "if available" serve both phrases like the eyeball of a crow. Eyeball of a crow क्या इसका ये इसको कहते हैं, एक संस्कृत के रूल होते हैं। eyeball of a crow माने उसकी आंख है ये एक, भैया कौवे की एक ही आंख है ना, तो ऐसे यहाँ लिखा एक है, लेकिन दोनों को समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नदी उपलब्ध है और मिट्टी उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। जैसे नेक्स्ट वर्स 27। और मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए? मंत्र पढ़ते हैं भाई, त्वं देवी आदि वाराहेणा ऋष्यः स्थानम् इच्छत उदर्श्यस्ते नवस्तुभ्यम् पापममं मे प्रणश्यसि। O Mother Earth, you were raised by Supreme Personality of Godhead in the form of boar because of your desiring to have the place to stay. I pray that you kindly vanquish all the reaction of my sinful life. I offer my respectful obedience unto you. ये है पृथ्वी को प्रणाम करना। वैसे हम जप करने बैठते हैं उससे पहले भूमि को प्रार्थना करते हैं। किसी को मंत्र याद है? सुना है? कौन सा? कैसे? कौन सा? पृथ्वी धृता लोका विष्णु पति आश्रम चाश्रम कुरु। पृथ्वी आप विष्णुपति हो, मैं इसके ऊपर आसन रख के भगवान की पूजा कर रहा हूं, मेरे आसन को पवित्र करो। आसनम पवित्रम कुरु। कि हमारे पास मैं बोलूँ हम ट्रांसेंडेंटल है। वैसे से ये है कि पृथ्वी पे जप करने से पहले अपना आसन, मैं ऊपर कह रहा था, पृथ्वी देवी
नारी का वक्षस्थल धरती पे नहीं लगना चाहिए, पृथ्वी को ये नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है। और साधु संत का अधोभाग बिना आसन पे सीधा धरती पे नहीं होना चाहिए, जब करे तो आसन होना चाहिए। भगवान के पूजा की सामग्री सीधी धरती पे नहीं रखनी चाहिए, किसी चीज के ऊपर रखनी चाहिए। तो इसके लिए आसन हरेक को अपना होना चाहिए। हमारे पास परंपरा नहीं है। आपने देखा साधु अपने झोले में अपना आसन लेके चलते हैं, जहां भी बैठना हो अपने आसन पे बैठते हैं। तो आसन अपना होना चाहिए। तो आसन को फिर पवित्र करना है। जब धरती पे आसन रखते हैं तब कहेंगे पृथ्वी अब आपके ऊपर आसन रख के जब करने बैठा हूं मेरे आसन को पवित्र करो। और फिर असल हम उसके बाद हमको भूत सिद्धि मंत्र पढ़ना चाहिए। मैं जब करने बैठ रहा हूं तो मैं अपनी सारी उपाधियों को भूल रहा हूं। गोपी पदौ गोपी भक्त पदरौ कमलौ दास 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 अनुदास। ये चैतन्य महाप्रभु को कहना है कि ये मंत्र पढ़ के फिर पूजा करो, जप करो, जो भी करो, कि अब मैं इसको कहते हैं, ये आपने शब्द पढ़ा होगा नेक्टर ऑफ डिवोशन में, इसको कहते हैं भूत सिद्धि। भूत सिद्धि एक शब्द उधर लिखा है, वो आप अंग्रेजी में ऐसे पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। आई एम नॉट बॉडी है, आई एम नॉट बॉडी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि मैं शरीर नहीं, वास्तविक में मैं आत्मा हूँ और गुरु के दृष्टि से मैं इस ताप से जल रहा हूँ। गुरु की कृपा से मैं दोबारा काशीवास से मैं इन दो गुणों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये क्या कुछ थोड़े से हम भी सिद्धांत अपने जीवन में अपनाएं तो ये ऑर्गेनाइज हमारा पूजा हो जाएगी। जब करने के लिए अपने आसन पे बैठे, आसन को पवित्र करें, भूत शुद्धि करके फिर पूजा करें, तो वो एक प्रोसेस प्रैक्टिकल है, आत्मशुद्धि उसको है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? देयर आफ्टर वन शुड परफॉर्म हिज डेली स्पिरिचुअल ड्यूटीज and then with great attention offer worship to the deity of the Supreme Personality of Godhead and also to the altar, the sun, water, fire and spiritual master. अब यहाँ इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है क्या। thereafter one should perform his daily spiritual duty, इसका मतलब अपना जप कर ले, जो नेम करता है, गायत्री वंदन आदि करता है, वो कर ले। फिर क्या करे? with great attention offer worship to the deity, फिर deity का पूजा करे। फिर क्या करे? आल्सो ऑफर टू द अल्टर ऑफ द सन, फिर सूर्य को नमस्कार करे। जल, फायर, अग्नि, जल और गुरुदेव, इन सबको प्रणाम करे, इनका आदर करे। अब आगे बढ़ रहे हैं, वर्स 29। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। O Supreme Personality of Godhead, greatest of all, who lives in everyone's heart and in whom everyone lives, O witness of everything, O Vasudeva, supreme and all-pervading person, I offer my respectful obeisance unto you. इस मंत्र का उच्चारण करे, obeisance to the Supreme Lord। फिर क्या करे? नमो, ये क्या है? ये पूरी प्रार्थना है, ये एक प्रार्थना है, सारी भगवान को करनी है। नमो अव्यक्तः सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विस्मद गुणज्ञाय गुण सांख्येन हेतवे। I offer my respectful obeisance unto you, the Supreme Person, being very subtle, Suksham. You are never visible to material eyes, Avyakt Murti. You are the knower of the 24 elements and you are the inaugurator of the Sankhya Yoga system. Srila Prabhupada writes, Chatuvinsa Guna, the 24 elements, they are
पढ़ने के सिवाय आप बताइए कौन से 24 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, 15 5 इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, बस ये जो 24वां है ये अलग अलग जगह पे अलग लिखा है। यहाँ 24वां लिखा है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं दूषित चित्त। यहाँ है दूषित चित्त। अब वास्तव में जहां लिखा है और जगहों पे क्या लिखा है? महत तत्व लिखा है। वो महत तत्व का अंश जो हमारे हृदय में होता है उसी को कहते हैं पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। जिसको महत तत्व का अंश जो जीव के हृदय में अंतःकरण में होता है उसी को कहते हैं पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। तो महत तत्व भी सही है और पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस भी सही है, क्योंकि महत तत्व हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस के रूप में रहता है। ये जो चित्त कहाँ है? बोला चित्त महत तत्व का अंश है हमारे हृदय में। उसका अंश चित्त के रूप में हमारे अंदर है। जिसको महत तत्व कहते हैं वो हमारे अंतःकरण में चित्त के रूप में है। ग्रास में नहीं, सटल में है। ग्रास में तो महत तत्व के जो अलग अलग हो गए इंद्रियां वो है, लेकिन स्वयं महत तत्व चित्त के रूप में है। तो दोनों सही है, महत तत्व भी सही है, चित्त भी सही है, क्योंकि चित्त महत तत्व का अंश है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, These are the subject matter of Sankhya, which was inaugurated by Kapil Dev. Sankhya Yoga was again propounded by the another Kapil, but he was an atheist and his system is not accepted as bona fide. ये कौन सा कपिल है? आज तक हमें पता नहीं लगा है दूसरा। हाँ, तो ये कौन सा कपिल है जी? ये हमारा ये तो नहीं है, टेम्पल कमांडर तो नहीं है ना? और तो कोई मिला नहीं आज तक। कुछ कभी मेरे को एक बार किसी ने पूछा, भाई कौन सा दूसरा कपिल है जिसने सांख्या को मटीरियल बताया, कौन सा है? तो मालूम नहीं कपिल कौन सा सही है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 24 qualities such as form are propounded by the Vaisheshika philosophers, or it can refer to the 24 elements of Sankhya philosophy. ये दोनों सिद्धांतों में 24 हैं, वो वैशेषिका में भी और सांख्य में भी। You are the knower of this philosophy. You are the originator of the Sankhya scripture. Guna Sankhya Hetave. Verse 31. Namo Divisrshane Tripade Chaturha Shringhaya Tantave Sapata Hastaya Yajnaya त्रैविद्या मने नमः। अब श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ के फिर हम चक्रवर्ती वाद का पढ़ेंगे। I offer my respectful obeisance unto you, the Supreme Personality of Godhead, who has 2 heads. द्वि क्या लिखा है? द्वि शिष्य, शिष्य मतलब सर, 2 सर है। ये कौन से सर हैं? यहाँ देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद ने लिखा है प्रायणीय और उदानीय। इसका मतलब है यज्ञ का आरंभ और यज्ञ का अंत। यज्ञ का आरंभ और यज्ञ का अंत, इसका अर्थ है। प्रायणीय और उदायनीय का अर्थ ये है। नीचे चक्रवर्ती पाद ने लिखा है 3 legs सवर्ण त्रयी। इसका भी अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, चक्रवर्ती वाद का पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 4 horns, सब में सब वही है, 4 वेद। श्रृंग, चतुस्र श्रृंग, 4 वेद। 7 hands, 7 छंद, गायत्री। ये छंद जो है ना वेदों का,
अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, और कौन से कुछ छंदों के नाम आते हैं? कनक मंजरी छंद है हमारे उपदेशामृत का अंतिम श्लोक, वो कुछ कनक मंजरी छंद में ऐसे कुछ अलग छंद है। 7 छंद है यहाँ लिखिए, आप ढूंढो 7 छंद कौन से। 7 छंदस, ब्रोवी छंद करे। I offer obeisance unto you, whose heart and soul are 3 Vedas, Karma Kand, Jnana Kand और Upasana Kand, and who expend 3 rituals in the form of sacrifice. अब ये हम पढ़ते हैं चक्रवर्ती पाद का परपट। आपको मिला? 7 छंद कौन से? लाइए। ये पढ़ाते हैं वहाँ, हमारे BIC में छंदों को पढ़ाते हैं। गायत्री उष्णिकानुष्ठप बृहति पंकति त्रिष्टुप जगति। ये एक में कितने शब्द होते हैं, वो छंद किसी में 12 है, किसी में 13 है। ये और भी अभी मैंने कहीं पढ़ाया है, इन छंदों का नाम पढ़ाया है, इनमें कितने कितने शब्द हैं वो भी पढ़ाया है। किसी में 8 है, 16 है, 18 है, ये छंद हैं पढ़ाया। या छठे या तीसरे स्कंद में अभी पढ़ाया है, थोड़े दिन पहले, ये याद आ जाएगा। अक्षर 8-8 हैं, 8-8 12 हैं, 8-8 8 हैं, 9-9 9 है, 10-10 10 है, ये सब लिखा है संस्कृत छंद। भगवत गीता में कितने छंद है वो भी कभी ढूंढना। अनुष्टुप मेन छंद है, कुछ और भी छंद है। अब सुनिए भाई इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से। रेस्पेक्ट्स आर ऑफर्ड टू गुण अवतार, ये श्लोक से लेकर ये और 2 नीचे वाले, इसमें गुण अवतार को प्रार्थना है। गुण अवतार कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। रेस्पेक्ट ऑफर्ड टू गुण अवतार एंड 3 वर्सेस, एक ये 2 नीचे। रेस्पेक्ट आर फर्स्ट ऑफर्ड टू विष्णु इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ, described in the Vedic mantra. He bestowed the result of the sacrifice, Tantave. He is the soul of 3 types of knowledge or scripture. The mantra describing Vishnu is Chatvari Shanghi Trayosya Asya Pada Deve Sirshe Dve Shirse Saptahaste So Asya Tridhaha Baddho Vrishabho रोरावित्तः महादेवो मर्त्याम आविशेष। The excellent Lord with 4 horns, 3 feet, 2 heads and 7 hands bound three times, roaring loudly, entered mankind. ऋग्वेद का मंत्र है। इसकी परिभाषा क्या है? The meaning is, याशक explained that the 4 horns are the 4 Vedas, ये प्रभुपाद ने लिखा है। The 3 feet are the 3 periods of the day, ये जो प्रभुपाद ने लिखा है 3 स्वरों में क्या लिखा है देखो, हाँ स्वर्ण पद, हाँ जो कुछ भी है, ये 3 दिन के टाइम है। कौन सा? प्रातः संध्या, मध्य संध्या, सायं संध्या, दिन के 3 हिस्से, क्योंकि उन्हीं समय पूजा होती है, संध्या वंदना आदि। इसका मतलब ये 3 periods of the day, 2 heads are the introductory and concluding portion of the sacrifice. इसको प्रभुपाद ने संस्कृत शब्द लिखे हैं, introductory and completing portion of the sacrifice. The 7 hands are the 7 meters, the 3 elements bound up by the mantra portion of the Veda. कौन से 3? ब्राह्मण पोर्शन, द कल्प पोर्शन, द रूल्स ऑफ द सैक्रिफाइस। वेदों के 4 हिस्से होते हैं जनरली, ब्राह्मण, अरण्यक, कल्प
तो इसमें 3 का वर्णन है। प्रभुपाद ने इसको सरल करके बताया, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। One chants Rauravi using the Rig Veda, Yajur Veda and Sam Veda. One invokes the Lord by the Rig Veda, performs sacrifice by Yajur Veda, and offer praises the Lord by Sam Veda. या ऋग्वेद से तप यज्ञ करना है और यजुर्वेद से भगवान की महिमा गानी है, सामवेद से महिमा गानी है, यजुर्वेद से यज्ञ करना है और ऋग्वेद से भगवान को आह्वान करना है। तो ये परपट थोड़ा इसका जो है टेक्निकल है, इस श्लोक का टेक्निकल पार्ट प्रभुपाद ने उसको दिया है, एक सिंप्लीफाइड दिया है इसको, इसका टेक्निकल पार्ट है। आपको चाहिए तो इसको समझ सकते हैं ये क्या लिखा है। और ये कहाँ से लिया है चक्रवर्ती पाद ने? भावार्थ दीपिका से दिया है। ये है श्रीधर स्वामी का, ये लिखा है सब महान देवो अस्य यज्ञ हो मर्त्याम आप आविष्ट एष ही। इसका अभी अनुवाद यहाँ नहीं है, हमारे पास हिंदी में है इसका, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसको देखने का। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च सर्व विद्याधिपत्यै भूतानां पत्यै नमः। अब देखो क्या कहा था, किसको प्रार्थना चल रही है? गुण अवतार को, तो विष्णु को हो गई, अब शिव को हो रही है। आई ऑफर माय रिस्पेक्ट ओबीसेंस अनटू लॉर्ड शिवा और रुद्र who are the reservoir of all potencies, the reservoir of all knowledge and master of everything. Srila Prabhupada's purport. It is the system for one to offer obeisance unto the expansion or incarnation of the Lord. Lord Shiva is the incarnation of ignorance, one of the material modes of nature. प्रभुपाद जी सीधा लिखे गुण अवतार शिवा है, उसको शिव भगवान शिव को, शिवा नहीं भगवान शिव को प्रार्थना। शिवा अंग्रेजी उच्चारण, शिवा सही नहीं, शिव। नमो हिरण्यगर्भाय प्रणयः जगतात्मने योगेश्वराय शरीराय नमस्ते योग हेतवे। ये है ब्रह्मा जी को प्रार्थना। आई ऑफर माय रिस्पेक्ट ओबीसेंस अनटू यू who are situated as Hiranyagarbha means Brahma, the source of the life, the super soul of every living entity. Your body is the source of opulence of all mystic power. I offer my respect obeisance unto you. As a Brahma, Namo Brahma ko namaskar hai. The Sutra Atma, the soul of the universe, soul of the universe, whose body is made of the power of yoga and who is the source of the yoga. Okay. So, pranaya means unto the Sutra Atma. You have the body made of power of the yoga, Sutra Atma. Pranaya. Verse 34. Namastadi Devaya साक्षी विभूत्यते नमः नारायणाय ऋष्यये नरहरये नमः। I offer my obeisances unto you who are the original personality of Godhead, the witness in the everyone's heart and incarnation of Nar Narayan Rishi in the form of human being. O personality of Godhead, I offer respect obeisance unto you. ये नर नारायण को प्रार्थना है। 35. नमो मर्कट श्यामा वपुषधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं
Namaste Pitavasase. O my Lord, I offer my respectful obeisance unto you, who are dressed in the yellow garment, whose bodies you resemble the Markat gem, and who have full control over the goddess of fortune. O my Lord Keshu, I offer my respectful obeisance unto you. ये सारा स्तुति है, प्रार्थना है, और प्रार्थना का आगे का श्लोक, त्वं सर्वः वरदः पुंसां वरेण यः वरदर्षभः अतस्ता श्रेयसे धीराः पादरेणुम् उपासते. O most exalted and worshipable Lord, best of those who bestow benediction, you can fulfill the desire of everyone, and therefore those who are sober for their own welfare worship the dust of your lotus feet. Varda, Varda, Rishabh, Varda mane वरदान देने वाले, benefit. Okay. All the demigods as well as the goddess of fortune engage in the service of his lotus feet. Indeed, they respect the fragrance of his lotus feet. May the Supreme Personality of Godhead be pleased with me. अभी तक नमस्कार था, अब प्रसीदते शब्द आएगा. देखो, अनावरन्तं तयम देवयः शिरस्यता पदम यः स्पृहयाम इवो मोदम भगवत में प्रसीदताम. क्या ये नमस्कार का अंग होता है? पहले नमस्कार होता है, फिर कहते हैं प्रसीदतम. बहुत जगह आपको ऐसे मिलेगा, कुछ श्लोकों में नमस्कार, फिर ये भगवान हमसे प्रसन्न हो. May the Lord whom the Devata and Lakshmi serve, as if this should be added, desiring the fragrance of his lotus feet, be pleased with me. अब यहां तक हुए मंत्र. एतै मंत्रै ऋषिकेशम आवहन पुरस्कृतम अरच्यै छंदसी युक्तः पादयो उपसर्ष सन. यहां तक ये आपको प्रार्थना करके भगवान को बिठा के, और फिर क्या करना चाहिए? Kashyap Muni continued by chanting all these mantra, welcome the Supreme Personality of Godhead with faith and devotion, and offering him items of worship such as Padya, Arghya, and should worship Keshav, Rishikesh, Krishna and Supreme Personality of Godhead. तो इन मंत्रों से भगवान का आवाहन करना है, बुलाना है, फिर उसको हाथ धोने का पानी देना है, पांव धोने का पानी देना है, पाद्य अर्घ्य देना है, और फिर क्या करना है? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ऑनरिंग पुरस्कृतम, और ये चक्रवर्ती पाद है. The Lord, by calling for him using these mantra, or putting the Lord in front of oneself and calling him, one should then worship the Lord by offering foot water and achmanyam. अब ये हो गया. In the beginning, the devotee should chant the द्वादश अक्षर मंत्र. अब भगवान आ गया, बिठा दिया, आचमन कर दिया, अब क्या करना चाहिए? 12 अक्षर का मंत्र जपना चाहिए. And offer flower garlands, incense and so on. And after worshipping Lord in this way, one should bathe the Lord with the milk and dress him with proper garment and sacred thread and ornaments. After offering water to wash the Lord's feet, one should again worship the Lord with the fragrant flower, incense and other paraphernalia. Srila Prabhupada's purport. Dwadas Akshar mantra is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. While worshipping the deity, one should ring the bell with the left hand and offer Padya, Arghya, Vatsar, Gandha, Mala, Abharana, Bhushana, and so on. In this way, one should bathe the Lord with milk, dress him, and again worship him with all paraphernalia.
नेक्स्ट, फिर क्या करना चाहिए? If one can afford to, one should offer the deity fine rice boiled in milk with clarified butter and molasses. गुड़ लिखा है ऊपर, गुड़म लिखा है, गुड़म, गुड़ डालना चाहिए, गुड़ में खीर पकानी चाहिए घी डाल के. While chanting this same original mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, one should offer all this to the fire. पका के यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए. Payasi Shrutam means rice cooked in milk. Payasam. फिर क्या करना चाहिए? One should offer all the prasad to the Vaishnavas, or offer him some of the prasad and then take some oneself. After this, one should offer deity Achman and then betel nuts and then again worship the Lord. इसका मतलब भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद वैष्णव को खिलाओ, फिर स्वयं खाओ, फिर भगवान को आचमन कराओ और फिर उनको पान का बीड़ा दो. नेक्स्ट वर्स. जप्येद स्तोत्र सततम स्तुतिभिः प्रभवम् कृत्वाः प्रदक्षिणां भूमौ प्रणवेद दण्डोन्मुदा. Thereafter one should silently murmur the mantra 108 times. वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जपे and offer prayers to the Lord for his glorification. Then one should circumambulate the Lord and finally with great delight and satisfaction offer obeisance falling straight like a rod, Dandvat. Next. After touching one's head, all the flowers and water offered to the deity, जो भगवान को फूल अर्पण किए, जल किया, वो अपने सर को छुए. One should throw them into the sacred place, जहाँ से सही जगह में पहुंचाया जाए. Then one should feed at least 2 Brahman with sweet rice. Minimum 2, उससे ज्यादा भी खिला सकते हैं. Next. One should perfectly honor the respectful Brahmins. One had fed जिसको खिलाया है उनका आदर करे. And then after taking their permission, one should take prasad with his friends and relatives. For that night, one should observe strict celibacy, and next morning after bathing again with purity and attention, one should bathe the deity of Vishnu with milk and worship him according to the method formally stated in detail. दूसरे दिन फिर सुबह ऐसे ही पूजा करें और ऐसे 12 दिन पूजा करें. Verse number 46. Worshipping the Lord Vishnu with great faith and devotion and living only on drinking milk, one should follow this vow. One should also offer oblation to the fire and feed the Brahmins as mentioned before. अब और क्या करना है? Next. In this way, until 12 days have passed, one should observe the Payovrta worshipping the Lord every day. रोज ऐसे करना है. Executing the routine duties, performing sacrifice and feeding the Brahmanas. अच्छा है भाई. और आप व्रत कीजिएगा, उनको खिलाइएगा. फीडिंग ब्राह्मण वाला पार्ट चलेगा साथ में. पार्ट 8 आज पूरा कर देते हैं. आज पूर्णाहुति हो जाएगी अपने कोर्स की. From Pratipada, पहला दिन, until the 13th day of the next bright moon, Triyodashi tak, Shukal Triyodashi, one should observe complete celibacy, sleep on the floor, bath 3 times a day, and thus execute the vow. ये और रूल है.
अब कोई एक आधा पढ़ ले, कोई पढ़ नहीं. During this period, one should not unnecessarily talk of material subjects. टेलीफोन नहीं उठाए, लिखा नहीं है. टेलीफोन को एब्सटेंट कंप्लीटली, 12 दिन टेलीफोन का त्याग. आजकल अगर कोई प्रयोग करे तो ये जरूरी है. Our topics of the sense gradation, one should be completely free from envy of all living entities, and one should be pure and simple devotee of Lord Vasudeva. Next. Thereafter, following the direction of the Shastra, with the help from the Brahman who know the Shastra, on the 30th day of the moon, one should bathe Lord Vishnu with fire, substance, milk, yogurt, ghee, sugar, पंचामृत से स्नान कराए. अब तो ये तो व्रत के आखिरी त्रयोदशी को स्नान करा लिया, फिर क्या करें? आइए क्या करते हैं देखिए. गिविंग अप माइजरली हैबिट, ये बहुत मुश्किल है. गिविंग अप माइजरली हैबिट ऑफ नॉट स्पेंडिंग मनी. इसका मतलब उधार चित्त होकर. One should arrange for the gorgeous worship of Supreme Personality of Godhead. पंडाल लगाए, लोगों को बुलाए. Vishnu, who is situated in the heart of every living entity. With great attention, one must prepare an oblation of grain, boiled ghee and milk, and must chant the Purusha Shukta mantra. बड़ी खीर बनाए और पुरुष शुक्त मंत्र का जपे. The offering of the food should be the varieties of the taste. अब बहुत बड़ा फीस्ट बनाए. In this way, one should worship the Supreme Personality of Godhead. क्या लिखा है? क्या छोड़े? पूज्यम महान कुर्याद वित्त षठया विवर्जितः. वित्त षठया विवर्जितः. इसका अर्थ क्या है? देखो, वित्त षठ विवर्जितः. वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखो, माइजरली मेंटलिटी को छोड़कर. अब देख, हाँ, तो ये क्या आपको अप्लाई करता है क्या जीवन में? देखो तो कोई भी पूजा वूजा में ये जो इसको वित्त धन षठ विवर्जितः चारों निरूप्य पयसी. सो उदारता से जब पूजा करनी है तो दिल के दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि भगवान को दिया हुआ कभी भी, एक कहावत है, ऋणु न थे किनु वेतर वधे घणु राह मटर चणो जी भेलती भलो थी. कविता है. जैसे खेत में चने का खेत हो और लोबिये का खेत हो तो उसके अंदर जितने पशु घूमेंगे उतना उसका फसल बढ़ेगा. ऐसे जितना दिया जाएगा उतना धन बढ़ेगा, कभी खराब नहीं होता है. इसलिए उदारता से भगवान को, भगवान की सेवा में दान करना चाहिए. षठ वित्ता, वित्त षठ वर्जिता. अब क्या करना चाहिए? One should satisfy the spiritual master आचार्य, who is very learned in Vedic. ये आचार्य कौन सा है? ये जिसने यज्ञ कराया है, इसको बोलते हैं पुरोहित आचार्य. और इसके साथ one should satisfy the assistant priest, वो जो यज्ञ के लिए होता था, उद्गाता था, उधरवा था और ब्रह्मा था. ये चार और बैठते हैं. इन सबको सेटिस्फाई क्या दे? One should please them by offering them clothing, कपड़ा दे. Ornament and cows, गाय कहाँ से लाएंगे? गाय कहाँ से लाके देंगे? This is the ceremony called Vishnu Aradhana or worship of Lord Vishnu. Verse number 54. O most auspicious lady, one should perform all the ceremonies under the direction of the learned Acharya and should satisfy them with their priests by distributing prasad. One should also satisfy the Brahmins and others who have assembled. इतना ही नहीं, और कोई ब्राह्मण आए तो उसको भी प्रसाद दे, सम्मान दे. और भी आगे देखिए क्या लिखा है. One should satisfy the spiritual master, assistant priest by giving them cloth, ornament, cows, and also some monetary contribution, dakshina. And by distributing prasad, one should satisfy everyone assembled, including even the lowest of men, the chandals, eater of the dark flesh.
Srila Prabhupada's purport. In the Vedic system, prasad is distributed as recommended here without discrimination as to who may take prasad, regardless of whether one be a Brahman, Shudra, Vaishya, Kshatriya, or even the lowest of the men, a Chandal, he should be welcome to accept prasad. However, when the Chandal, the lowest class or poor class, are taking prasad, this does not mean that they have become Narayan. अब प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं कि उसको दरिद्र नारायण नहीं समझना चाहिए, ये गलत विचार है, उनको प्रसाद खिलाना जरूर चाहिए. मेंटलिटी शुड बी कंप्लीटली गिवन अप. कौन सी दरिद्र नारायण वाली मेंटलिटी छोड़ दो. Everyone should be given a percentage to take prasad, but this does not mean that everyone has the right to become Narayan. So अब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए. कुछ बात आपको प्रसाद के ऊपर कहनी है. क्या कूपन नहीं देना चाहिए. कूपन? हरे कृष्ण. वृंदावन में किसी वक्त में कूपन होता था. जब से फ्री प्रसाद किया है तब से पहले से ज्यादा धन आ रहा है और ज्यादा आ रहा है. एक हरिद्वार में आश्रम है, वहां साधु जो रहते हैं, जो भी रहता है उनको प्रसाद देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं. मैंने उनसे पूछा, बोला 80% फ्री में खा जाते हैं, लेकिन 20% दे जाते हैं 80 से ज्यादा को खिलाने के लिए. ये रूल है. लेकिन इसके लिए हमारे को विश्वास होना चाहिए कि भगवान देंगे. प्रभुपाद का एक लेटर आप सबको याद होगा. प्रभुपाद ने लिखा है कि हमारे मंदिरों में कोई भी आए उनको प्रसाद खिलाओ, और प्रसाद की डिस्क्रिप्शन बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है, पूरी सब्जी हलवा सब कुछ लिखा है. फिर कहा है जैसे वो बैच खत्म हो जाए दूसरी बैच तैयार करना. और फिर लिखा है किचन की मालिक राधा रानी है, जिसकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं. आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप खिलाया करो. ये प्रभुपाद ने लेटर कहाँ से लिखा है? कलकत्ता से लिखा है. कब लिखा है? 77 में लिखा है. कौन से सरकमटेंसेस के अंतर्गत लिखा है? कुंभ मेले से प्रभुपाद जी गए थे. स्नान के दिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था नहीं थी. भागवत दास इंचार्ज था. 1 घंटा उसको प्रभुपाद ने अच्छी तरह से जो है चेस्टाइज किया कि क्यों प्रसाद वितरण का प्रबंध नहीं किया है. हमारा कुंभ मेले में प्रसाद वितरण करना मुख्य कार्य है. उसने कहा रोड बंद हो गए. बोला पहले पता क्यों नहीं किया? प्रभुपाद के दिमाग में ये बात थी. वहाँ से कलकत्ते गए और कलकत्ता से जाने वाले थे भुवनेश्वर. कमाल कृष्ण महाराज से ये चिट्ठी दिखाई सारे मंदिरों के लिए. ये तो आउटस्टैंडिंग आर्डर प्रभुपाद का सब टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए है. देखा है ये लेटर? देख लेना. ये प्रेसिडेंट देखते ही नहीं है, क्योंकि ये करना पड़ेगा ना. प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से जा रहे थे न्यू वृंदावन, और जो भक्त उनको लेने आए थे उनको कहने लगे कि हमने ये इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट पूरी दुनिया में 2 चीजों से जो है, वी स्प्रेड दिस मूवमेंट बाय 2 थिंग्स. प्रभु क्या बोला? स्वीट कीर्तन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद. सिर्फ कीर्तन और प्रसाद से इस्कॉन की स्थापना हुई है, प्रभुपाद ने कहा. और फिर कहा इन द अर्ली डेज ब्रह्मानंद वी डोंट हैव इवन प्रसाद. शुरू में हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी. और प्रभुपाद उस दिन कह रहे थे एक सेब मेरे पास आता था और मैं लोग गिनता था कितने आए हैं क्लास में, उतने टुकड़े करता था और सबको एक टुकड़ा प्रसाद का देता था. और इस चीज को लेकर किसी बुद्धिमान ने सोचा और कहा कि प्रभुपाद के पास केला भी आया होगा, अनार भी आया होगा, तो सेब ही क्यों लिखा? बोला ये सेब का कमाल दुनिया में हमेशा रहा है. एक एप्पल तो स्वर्ग में गिरा था, आदम ने खाया, दुनिया बनी. एक एप्पल पेड़ से गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया. एक एप्पल पॉप म्यूजिक बढ़ा दुनिया के अंदर, जब एप्पल रिकॉर्ड चला. एक एप्पल
दुनिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री में एप्पल कंप्यूटर आया, लेकिन असली एप्पल प्रभुपाद ने बांटा जिससे इस्कॉन बन गया। ये एप्पल का चमत्कार है, मिरेकल्स ऑफ एप्पल। बहुत एप्पल के मिरेकल है, लेकिन प्रभुपाद का एप्पल वितरण प्रसाद सबसे बड़ा शक्तिशाली है। और 56 One should distribute Vishnu Prasad to everyone, including the poor man, the blind man, and non-devotees and non-Brahmins, knowing that Lord Vishnu is very pleased when everyone is sumptuously fed with the Vishnu Prasad. The performer of the yajna should then take prasad with his friends and relatives. ये प्रभुपाद जी का दूसरा आपको प्रसाद के विषय में अगर एपिसोड याद हो, 74 गोवर्धन पूजा का उत्सव मायापुर में हुआ। भक्तों ने प्रसाद खा के पत्तल बाहर फेंके। पत्तल के ऊपर थोड़ा प्रसाद था, एक तरफ कुत्ते और एक तरफ बंगाली बच्चे उसके ऊपर झपट रहे थे। प्रभुपाद ने देखा, सारे लीडर्स को बुलाया, बोला आज के बाद हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, यहाँ से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है सोसाइटी के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की। This is the religious ritualistic ceremony known as Payo Varta, by which one may worship the Supreme Personality of Godhead. Received this information from Brahma, my grandfather, and now I have described it to you in all details. कश्यप जी ने देवहूति को आदिति को कहा, और फिर O most fortunate lady, establishing your mind and good spirit, execute this process of Payo Vrta, and thus worshipping Supreme Lord Keshav, who is inexhaustible avyayam. Then this Payo Vrta is also known as Sarva Yajna. In other words, by performing this sacrifice, one can perform all other sacrifices automatically. This is also acknowledged to be the B of all ritualistic ceremonies. O gentle lady, it is the essence of all austerities, and it is the process of giving charity and pleasing the Supreme Lord. एक काम में सब काम हो जाएंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य छोटा सा इसके ऊपर। आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम. This is the statement made by Lord Shiva to Parvati. Worshipping Lord Vishnu is the supreme process of worship. And how Lord Vishnu is worshipped in this Payo Vrta ceremony has now been fully described. The ultimate goal of the life is to please Lord Vishnu by Varna Ashram Dharma. Vedic principle of 4 Varna and 4 Ashram are meant to worship Lord Vishnu. Vishnu aradhyate pantha na anyat tatra toshanam karanam. तत्व का मतलब भगवान होता है, त्वम का मतलब जीव, तत्व का मतलब भगवान, तत्व तुम. The Krishna conscious movement is also Vishnu Aradhanam, or worship of Lord Vishnu according to the age. Payo Vrta method of Vishnu Aradhanam was enunciated long ago by Kashyap Muni to his wife Aditi in the heavenly planet, and the same process bona fide on earth even now. Especially for this age of Kali, the process accepted by Krishna conscious movement is to open 100,000 of Vishnu temple of Radha Krishna, Jagannath Baldev Subhadra, Jagannath Balram, Krishna, Jagannath, Balram, Sitaram, Gaurnita and so on, performing prescribed worship in such temple of Vishnu, and thus worshipping Lord as good as performing Payo Vrta ceremony recommended here. वो तो 12 दिन करना है, हम तो 12 महीने करते हैं. The Payo Vrta ceremony is performed from the 1st to the 13th day of the bright fortnight of the
noon. But in our Krishna conscious movement, Lord Vishnu is worshipped in every temple according to the schedule of 24 hours of engagement in performing kirtan, chanting of the Hare Krishna Mahamantra, offering palatable food to the Lord Vishnu, and distributing this food to the Vaishnava and others. There are authorized activities. These are authorized activities, and if the members of the Krishna conscious movement stick to these principles, ये लाइन को आप याद रखिए, stick to these principles. If they stick to these principles, they will achieve the same result one gained by observing Payovrta ceremony. Thus, the essence of all auspicious activities, such as performing yajna, giving in charity, observing vrta, and undergoing austerity, is included in the Krishna conscious movement. The members of this movement should immediately and sincerely follow the process already recommended. Of course, sacrifice is meant to please Lord Vishnu. Yajnai sankirtan praye yajanti sumedasa. In Kali Yuga, those who are intelligent perform sankirtan yajna. One should follow this process continuously. So ये पर्पट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आपका जरूर होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक में देखना, लेकिन मेरे लिए एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इफ वी स्टिक टू दिस प्रिंसिपल, डिटी वर्शिप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चलेगा, ये हमारा प्योर अर्थ है चैंटिंग. It is called all sacrifice, means that by performing this all sacrifice is performed. If this was performed, all was are performed. If it is the essence of austerity, because all the austerities are the performed. Thus it is the essence of all sacrifice, vows and charity. Chakravarti Pad likhte hai. This should be understood. It satisfies Vishnu. The words here indicate that this is the sacrifice, vow, austerity, charity, which satisfy Lord Vishnu. Verse number 61. One more verse we have to go. This is the best process for pleasing the transcendental Supreme Personality of Godhead, known as Adhokshaja. It is the best of the regulative principle, the best austerity, and the best process of giving charity, and the best process of sacrifice. Taeva niyamah sakshat taeva e yamottamah tapodanam vratam yagno yena tushyati adhokshaja. अब लास्ट पर शिला प्रभुपाद पढ़िए, कोई पढ़े जरा इसका पर पढ़िए, माइक लीजिए. The Supreme Lord said in Bhagavad Gita 8.6 Sarvadhaman Patilyam Mamayakam Shimamila Am Taram Sarpapavya Moksha Masucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Unless one pleases the Supreme Personality of Godhead according to his demand, no good result will come from any of his action. Dharma Sarvishkata Kunsam Vishwasayam Kathasvaya Nautpadate Yadi Rati Shramayadi Kirna. The occupational activity a man perform according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Bhagavatam 1.28. If one is not interested in satisfying Lord Vishnu, Vasudeva, all his so-called auspicious activities are fruitless. Novasa, Nova Karmano, Nova Jnana, Vichekasa. Because he is bewildered, he is baffled in his hopes, baffled in his activities, and baffled in his knowledge. In this regard, Sri Vishwanath Chakravarti remarks, Napumamshakam Anupam Sarkante Adinakya Katvam. One cannot equate the potent and the impotent. Among modern Mayavadis, it has become fashionable to say that whatever one does or whatever path one follows
is all right. But these are foolish statements. Here it is forcefully affirmed that this is the only method for success in life. Ishvara Tarpana, Vina Sarvam Eva Vibhavana. Unless Lord Vishnu is satisfied, all of one pious activity, rituals, ceremonies, and yajnas are simply for show and have no value. Unfortunately, foolish people do not know the secret of success. Na te vidu sarvata katem hi Vishnu. They do not know that real self-interest and in pleasing Lord Vishnu. Without pleasing Lord, all things are useless. There are not other reactions than these. The singular yen is used according to the rule. Okay, last verse now. Tasmadetad vratam bhadre priyattaha shraddhaya chara Bhagavan paritushyastaste varam asu vidhasyati. Therefore, my dear gentle lady, follow this ritualistic vow, steadily observing regularity principle. By this process, the Supreme Person will be very soon be pleased with you and will satisfy all your desires. And the Bhaktivedanta Purport of 8th Canto, 16th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Executing Payovrta Process of Worship. हरे कृष्णा, हमारा काम हो गया। इसके बाद पयोव्रत करेगी, आदिति को भगवान विष्णु दर्शन देंगे, कहेंगे कि आदिति आप जिस काम के लिए व्रत कर रही है काम बहुत मुश्किल है, बलि का ब्राह्मणों की पूजा के कारण मैं उसको अन्याय से हटा नहीं सकता, परंतु माता तुमने व्रत किया है इसको भी निष्फल नहीं जाने दूंगा, और अब तुम कश्यप में मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे घर में इंद्र का छोटा भाई होकर जन्म लूँगा और फिर मैं आपका मनोरथ पूरा करूँगा। तो ये नेक्स्ट अध्याय में आएगा। तो यहाँ हमारा आज का